Hello students, welcome to YSR Academy. आज के मॉड्यूल में we'll be discussing about the next topic of a very interesting chapter of molecular basis of inheritance, and that is what is called as translation. Students, in the last class, we talked about what was DNA transcription. We also talked about the concept of genetic code. We also talked about the structure of tRNA. Okay, अभी हम लोग को आगे बढ़ना है और समझना है कि what exactly the structure or the process of the translation machinery is, how does it proceed, how does it function, and why are we really doing the process of translation. I will highly suggest you to please go back to the earlier videos to have a better understanding of this topic which we are going to discuss today. So students, let's begin and understand translation. Now, अगर translation को अपने को define करना रहा, how can we define translation? Translation is nothing but a process in which mRNA, the information which is present on the mRNA is converted into amino acids and followed by protein. Okay students, so this is the basic कि जहाँ पे आपने mRNA के इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो था, उस mRNA के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आपने प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया थ्रू अमाइनो एसिड. और इसी को लेकर मैंने, इफ यू रिमेंबर, आई ऑल्सो डिड से दैट you have your mRNA. This needs to be converted into amino acid. Okay, amino acids, and then amino acids will collectively join together to form nothing but protein. This process is what is called as translation. Translation can be seen in both eukaryotic and a prokaryotic cell. So दोनों cases में दिखता है वो. So to specify it down, it is seen in both prokaryotic and eukaryotic cell. Okay students, now what is the location of the translation occurs in a cell organelle which is called as ribosomes. Okay, ribosomes, and ribosomes जो होते हैं, they are located in what is called as cytoplasm. सो साइटोप्लाज्म के अंदर देयर इज अ सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है राइबोसोम, और यही राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियली कन्वर्टिंग दैट sequence of the mRNA into amino acids and followed by protein. So students, how is the process divided or how is the process distributed? Again, exactly transcription जैसा वो same है. Translation में अपन transcription में अपन ने क्या किया था? You had initiation, you had elongation and you have termination. Similar process यहीं पे भी follow होता है, but यहाँ पे what all things do you require? Now you require, यहाँ पे there is requirement of what is called as mRNA. सबसे पहले आपको mRNA चाहिए, then you will require tRNA. Okay, then you will require ribosomes. Okay, ribosomes लग सकता है. Then you can require magnesium as a cofactor for allowing the process to happen. Then you can require ATP as a source of energy. Okay, other than that, ribosomes जो होंगे इनका स्ट्रक्चर 11 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, याद नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ. राइबोसोम consists of two subunit. One is called as a larger subunit. Okay, one is a larger subunit, another is called as a smaller subunit. Okay, so one is a larger subunit, another is a smaller subunit. अभी larger and smaller subunit का prokaryotic and eukaryotic cell में
जो डायमेंशंस है वो थोड़े अलग है, बट अभी इस चैप्टर में वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट राइट नाउ. But just remember that be it a prokaryotic cell or a eukaryotic cell, you will definitely have larger and smaller subunits. Okay students, so other than that इसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया रहे कि स्ट्रक्चर होता कैसे है. So you have a larger subunit something like this, ठीक है, and then you have a smaller subunit something like this. Okay, ऐसा दो यूनिट्स में डिवाइड करते हैं आप. दिस इज योर लार्जर सब यूनिट. ओके, दिस इज योर स्मॉलर सब यूनिट. ओके, अभी आपको जब भी ट्रांसलेशन को इनिशिएट करना है तो मैंने क्या बोला था, देर आर 3 steps. ओके, सो देर आर 3 steps इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. कैन यू जस्ट रिकलेक्ट देम? सबसे पहला, यस, सबसे पहला इज इनिशिएशन. सबसे पहले इज इनिशिएशन, सेकेंड इज करेक्ट elongation. Okay, second is elongation, third is called as termination. The third is called as termination. So these are the 3 processes. ये 3 अलग अलग प्रोसेस है जिससे ट्रांसलेशन कंडक्ट होता है. हमेशा याद रखेंगे आप, हमेशा याद रखेंगे. जेनेटिक कोड को जरा याद करिए. जब भी अपन ने mRNA बनाया था, ओके, जब आपने mRNA बनाया था तो mRNA को पोलैरिटी था ना, कुछ याद है? mRNA को पोलैरिटी था. सो मान लो ये अगर आपका mRNA है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 5 प्राइम एंड इट एंडेड एट 3 प्राइम. ओके, एंड हमेशा स्टार्ट कोडॉन होता था जिसका नाम था AUG. AUG is a start codon. This start codon is going to synthesize a type of amino acid which is called as methionine. So मतलब हमेशा हमेशा no matter what happens, हमेशा AUG जो है, AUG it is going to synthesize a amino acid which is called as methionine or methionine. ठीक है, बट इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है. मिथ्योनिन जो है, वी टॉक इन केसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोट्स. ठीक है, और इसका थोड़ा सा नाम अलग हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट prokaryotic cell, which is called as formyl methionine, and this formyl methionine is seen in organisms belonging to category of prokaryotes like bacteria. ठीक है, सो ये आपको एक चीज याद रखना है कि जहां पे कि ऑर्गेनिजम्स जो है, ऑर्गेनिजम्स विच आर prokaryotic in nature have formyl methionine as their स्टार्टिंग अमीनो एसिड, एंड जिनका यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है उनके पास इनिशिएशन वाला जो स्टार्टिंग वाला जो अमीनो एसिड होगा दैट विल बी मिथ्योनिन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज सबसे पहला ये सब चीजें होने से पहले आपको एसोसिएशन करना पड़ेगा. राइबोसोम्स जब ट्रांसलेशन करते हैं उसके बाद ही वो 2 राइबोसोम्स जब है वो एक साथ आते हैं, अदरवाइज उनका लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट कंप्लीटली अलग रहता है. मतलब आपको सबसे पहला क्या करना पड़ता है, यू विल हैव टू हैव एसोसिएशन. ओके, यू विल हैव टू हैव एसोसिएशन ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम. ओके, आपको राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट्स को एसोसिएट करना पड़ेगा. एक बार एसोसिएशन कर दिया, एसोसिएशन के दौरान जो इसका स्मॉलर सब यूनिट होता है ना, पे अटेंशन, स्मॉलर सब यूनिट इज गोइंग टू हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ mRNA. ओके, mRNA. सो मतलब जो स्मॉलर सब यूनिट, कैन यू सी दिस फर्स्ट डायग्राम, स्मॉलर सब यूनिट ये वाला आपका ये जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है. स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर जो रेड कलर का mRNA है, तो mRNA का अटैचमेंट होगा जो स्मॉलर सब यूनिट करवाता है. फैंटास्टिक. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अभी एक बार ये प्रोसीजर होने के बाद नेक्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू एक्टिवेट. सो एक्टिवेशन ऑफ tRNA. ओके स्टूडेंट्स, मतलब बिकॉज मैंने लास्ट टाइम जब आपको tRNA का स्ट्रक्चर बताया था, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा
मैंने ये भी क्लियर किया था वहां पे कि आपको एक्टिवेशन के लिए टीआरएनए जब प्रोटीन बनता है, जब अमाइनो एसिड बनता है, उस दौरान यू विल हैव टू ensure that the codon present on the mRNA should bind to the anticodon present on the tRNA. So this kind of binding will require tRNA to get initiated at first. ओके तो इनिशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनिशिएशन के लिए सबसे पहले आपको एक्टिवेशन लगेगा जो ये टीआरएनए कर सकता है। अभी एक्टिवेशन के लिए क्या लगेगा? एक्टिवेशन के लिए आपको कुछ एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स लगते हैं। नाउ बिफोर आई जंप इनटू दैट, यू अंडरस्टैंड वन थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये आपका लार्जर सब यूनिट, ठीक है। लार्जर सब यूनिट के पास 3 साइट्स होते हैं, 3 साइट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ 3 साइट्स होते हैं, और ये 3 साइट्स को उन्होंने लेबल किया है कुछ इस तरीके से। ई है, यहाँ पे पी है, देन यू हैव ए। ओके, वेर वेर ई स्टैंड्स फॉर exit site, okay, P stands for peptidal site, okay, peptidal site, and then you have A which stands for amino acyl site, अमाइनो असाइल साइट। ये 3 साइट्स है, ओके। तो सबसे पहला जो टीआरएनए रहेगा, इमेजिन करिए सबसे पहला टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन क्या होगा, उसको उस सबसे पहले वाले टीआरएनए को आप बोलते हो इनिशिएटर टीआरएनए, जो प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। सो द इनिशिएटर टीआरएनए जो कि प्रेजेंट है, दिस इनिशिएटर टीआरएनए विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग का सिंपली मतलब होता है इट इज गोइंग टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन, ओके। ये एक्टिवेशन को अंडरगो करेगा। एक्टिवेशन कैसे करेगा? बाय हैविंग अ एंटीकोडॉन, बाय हैविंग अ एंटीकोडॉन टू कोडॉन on mRNA. Okay, now students, there is a concept which is present here. Look at it. What was the codon, the very first codon present on the mRNA? Just think about it. What was the first codon जो कि mRNA पे present था? Correct, it was AUG. So मतलब अगर mRNA पे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर मान लीजिए तुम्हारा ये mRNA है, सो यहाँ पे mRNA पे कोडॉन होगा जिसका नाम है AUG, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 प्राइम एंड देन इट इज एंडिंग एट 3 प्राइम। तो कैन आई से व्हेन वी ड्रॉ एंटी कोडॉन, ओके, जब अपन एंटी कोडॉन का लूप लिखेंगे टीआरएनए पे, तो कैन आई से इट विल बी U, इट विल बी A, इट विल बी C। और ये जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा ना गाइस, ये जब बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगा, बात समझना जरा, ये जब बाइंडिंग कंप्लीट हो गया, बाइंड कैसा होगा, दिस बॉन्डिंग, ओके, दिस bonding will occur through formation of hydrogen bonds, okay, this bonding will occur through formation of hydrogen bonds। एक बार bonding complete, what happens next? Next is the very first amino acid formed। एंड स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा है। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज नथिंग बट, एब्सोल्युटली राइट, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिथायोनीन। ओके, द फर्स्ट अमाइनो एसिड इज मिथ्योनिन, ओके, मिथ्योनिन। सो मिथ्योनिन आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड है जो कि यहाँ पे बनेगा। ये जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे बताया, ये जो प्रोसेस बताइए, दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन, कि जहाँ पे आपने क्या किया, आपने इनिशिएटर टीआरएनए किया, चार्जिंग किया, एक्टिवेशन कर दिया ताकि आपको वो एंटीकोडॉन दे सके। कोडॉन एंटीकोडॉन का बाइंडिंग हो गया, एक अमाइनो एसिड बन गया, उस अमाइनो एसिड का नाम था मिथ्योनिन। Fantastic. Now this process wherein you are forming the type of amino acid which is methionine to begin with occurs on the site which is called as the P site. Can you see here? Can you see here P site? तो ये चीजें हो रही है P site पे, therefore it is called as a peptidal site, कि जहाँ पे सबसे पहला अमाइनो एसिड आपका बन गया है।
ओके तो यहाँ तक मैंने क्या क्या आपको समझाने का कोशिश किया, स्टूडेंट्स जरा समझने का ट्राई करिए कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज हाउ डज द इनिशिएशन अकर। इनिशिएशन हुआ कैसे, मतलब अभी सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे मैंने जो भी अभी लिखा है, कैन आई से दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ, दिस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन। ओके इट इज इनिशिएशन। ओके अभी सेकंड क्या है भाई, सेकंड क्या है, द सेकंड स्टेप इज करेक्ट, द सेकंड स्टेप इज इलोंगेशन। ओके सेकेंड स्टेप जो आपका है दैट इज इलोंगेशन। अभी इलोंगेशन में व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट हैव ओनली वन कोडॉन राइट, यू कैन हैव, यू विल हैव मल्टीपल कोडॉन्स, आपके पास मल्टीपल अलग अलग टाइप के कोडॉन्स है। मतलब आपको क्या है यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इलोंगेशन जब हो रहा है, जब इलोंगेशन चल रहा है तो कैन आई से अदर कोडॉन्स, ओके अदर कोडॉन्स present on mRNA, okay, they will bind to the respective tRNA के एंटी कोडॉन्स। सो एंटी कोडॉन्स को रिस्पेक्टिवली बाइंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाए। सो मान लो आपके पास 5 प्राइम है, देन यू हैव अ सीक्वेंस 3 प्राइम, ओके। मान लो इनिशियली आपके पास AUG था, ये तो स्कैन हो गया ना। फिर मान लो GGG था, देन मान लो GUC था, ठीक है। मान लो AAC, ओके। मैंने मान लो 4 कोडॉन्स ले लिए। पहला वाला कोडॉन तो स्कैंड, ठीक, पहले वाला कोडॉन तो डन, पहले वाले कोडॉन में तो कोई इशू नहीं है। अभी क्या करना है मुझे, नाउ जस्ट गो बैक टू द डायग्राम, गो बैक टू द डायग्राम। पहला वाला जो मिथ्योनिन बना था वो अभी भी पी साइट पे है, कैन यू सी यहाँ पे पी साइट पे। तो अभी पी साइट के बाद राइबोसोम जो रहेगा ना, राइबोसोम इज गोइंग टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, आई विल टेल यू। ट्रांसलोकेशन, सो एक बार उसको पता चल गया कि भाई मेरा पहला काम हो चुका है, एक बार फर्स्ट कोडॉन इज स्कैन्ड, देन उसके बाद क्या करेगा पता है, जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स दे राइबोसोम दे आर गोइंग टू जंप, they are going to jump over the sequence of mRNA, ओके। तो दे विल जंप, एक बार वो जंप करेंगे तो कहना से मान लो आपका राइबोसोम यहाँ पे है, एक बार वो जंप करेंगे तो कहना से इट विल कम ऑन टू द सेकंड कोडॉन, ठीक है। तो जंपिंग विल बी ऑलवेज वन कोडॉन फॉलोड बाय द अदर कोडॉन। सो एक कोडॉन पे जंप किए, उसके बाद वो लोग दूसरे कोडॉन पे जंप कर दिए, तो दूसरे कोडॉन पे जंप करना। अभी जब दूसरे कोडॉन पे जंप करे तो इस प्रोसेस का कुछ तो नाम होगा ना, लोअर स्टैंडर्ड में आपने इसको सुना है। द नेम ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, जिनको आ गया फैंटास्टिक, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन स्टूडेंट्स, ट्रांसलोकेशन व्हिच मींस राइबोसोम जो रहता है, राइबोसोम एक सीक्वेंस छोड़ के दूसरे सीक्वेंस में जंप करता है। सो फ्रॉम वन सीक्वेंस टू the other sequence, I mean to say the codon. This process wherein ribosome is doing that job is what is called as the translocation. इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण अभी आपको GGG आया, देखिए GG, अभी GGG आने के बाद क्या, GGG आने के बाद क्या, there will be new tRNA, okay, pay attention to what I'm saying now. After this translocation there is new tRNA, okay, which attaches to the P site, okay, it attaches to the A site, A site को अटैच किया। एक बार A site को अटैच हो गया, वैसा ही there will be codon and anticodon pairing, okay, codon and anticodon pairing, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन पेयरिंग मतलब यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। ये देखो यहाँ से हुआ, न्यू इनकमिंग आया, ए साइड पे नया आया, वहाँ पे कोडॉन एंटीकोडॉन का पेयरिंग हो गया। कोडॉन एंटीकोडॉन का पेयरिंग होने के कारण देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू अमाइनो एसिड, एक नया अमाइनो एसिड बन गया। सो मतलब मेरा बोलने का क्या है, एक बार कोडॉन एंटीकोडॉन पेयर हो गया, ओके, देन क्या होगा, देन देयर विल बी न्यू
अमीनो एसिड फॉर्म्ड। ओके, न्यू अमाइनो एसिड फॉर्म। तो अभी न्यू अमाइनो एसिड बन गया है, मतलब अभी इनिशियली अगर मैं बात करूं मिथ्योनिन, इनिशियली मेरे पास देखो, इनिशियली मेरे पास मान लो ये मिथ्योनिन था, मिथ्योनिन, ठीक है। अभी मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास दूसरा टाइप का अमाइनो एसिड और एक आ गया, और एक आ रहा है। बट कैन आई से ये सिर्फ अभी तक अमाइनो एसिड है, अभी तक वो प्रोटीन बने बने नहीं है। सो कैन आई से राइबोसोम वापस से फ्लिप मारेगा, वापस से जंप करेगा। बट दिस टाइम जब राइबोसोम, इमेजिन करो जैसे वो आगे जंप करेगा, तो कैन आई से ये ग्रीन वाला इधर शिफ्ट हो गया। ओके, ग्रीन वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ग्रीन वाला जो टीआरएनए था ये इस तरफ शिफ्ट हो गया, और ये जो ब्लू वाला है वो पी साइट पे आ गया। तो वापस ए साइट वेकेंट, कहने से ए साइड देखो खाली है, यहाँ पे भरा हुआ था, यहाँ पे खाली है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, न्यू अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ। न्यू अमाइनो एसिड फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या, नेक्स्ट प्रोसीजर क्या कि देयर विल राइबोसोम विल अंडरगो translocation once more time. Once again ribosome is undergoing translocation. Because ribosome undergoes translocation, now what happens, a site is vacant again, a site vacant है, a site vacant है, इसका मतलब क्या, करेक्ट, न्यू टी आर एन ए अटैचमेंट, नया टी आर एन ए आएगा। अभी नया टीआरएनए जब आएगा तो कहना है वो नए एंटीकोडॉन्स लेकर आएगा। मान लो सेकंड जीजीजी खत्म, ठीक है, वो भी स्कैन होकर आपको एक अमाइनो एसिड मिल गया, कहना है नाउ द नेक्स्ट इज जीयूसी। तो जीयूसी के लिए नया टीआरएनए विल ब्रिंग द रिस्पेक्टिव एंटीकोडॉन्स एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। तो न्यू टीआरएनए अटैचमेंट आ गया, न्यू टीआरएनए अटैचमेंट हुआ। ये अटैचमेंट कहां पे हुआ, दिस अटैचमेंट अकर्ड ऑन द एमआरएनए टीआरएनए कोडॉन एंटीकोडॉन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोडॉन एंटीकोडॉन कॉम्प्लेक्स हो गया। उसके बाद व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, आफ्टर दिस प्रोसेस इज डन, द नेक्स्ट प्रोसेस इज न्यू अमीनो एसिड फॉर्मेशन, नया अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। वापस ट्रांसलोकेशन आएगा ना, वापस द प्रोसेस विल कंटिन्यू। कब तक? Will this go on forever? The answer is absolutely not, because now this process has to stop somewhere, right? So ये जो मैंने यहाँ पे process लिखा, this is just a elongation वाला part, wherein new amino acid, new tRNA comes in, there is formation of new amino acid followed by, मतलब A से enter मारता है, P पे बॉन्ड बनेगा और E से एग्जिट करेगा। अभी सर बॉन्ड का मतलब क्या है, क्या ना ऐसे यहाँ पे मान लो हाइपोथेटिकली, मान लो मैंने 3 अमाइनो एसिड बना दिए, but these are amino acids, no, you can't call them protein. In order to call them protein, what do you really require? You will require an enzyme, you will require a bond formation. So इस केस में दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनाने का काम भी होता है। Only then can you call this as protein. Okay? ओके, प्रोटीन, तभी जाकर आप इसको प्रोटीन बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पूरा इलोंगेशन है, इलोंगेशन है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या, नेक्स्ट प्रोसीजर वुड बी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, नेक्स्ट प्रोसीजर वुड बी टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन इज व्हेन यू आर गोइंग टू स्टॉप द प्रोसेस, जब आप प्रोसेस को होल्ड करते हैं या फिर प्रोसेस को हॉल्ट कर देते हैं। उस हॉल्टिंग के दौरान यू रिक्वायर व्हाट इज कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन्स। ओके, सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टॉप कोडॉन्स। डू यू रिमेंबर व्हाट आर स्टॉप कोडॉन्स? क्या आपको याद है स्टॉप कोडॉन्स क्या होता है? स्टॉप कोडॉन्स 3 अलग अलग टाइप के थे, बता सकते कोई? यस, UAA, UAG एंड UGA। ओके, इन तीनों में से कोई एक स्टॉप कोडॉन रहेगा जो कि आपके एमआरएनए के एंडिंग में प्रेजेंट रहेगा। जैसा ही वो एंटर करेगा स्कैन करने के लिए राइबोसोम के अंदर, द प्रोसेस विल स्टॉप। मतलब क्या, स्टॉप कोडॉन्स टेक्निकली कर क्या रहे, स्टॉप कोडॉन्स जो है दे आर halting the process of ट्रांसलेशन के प्रोसेस को लोग क्या कर दे रहे हैं, होल्ड कर दे रहे हैं या फिर हॉल्ट कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। एंड अदर देन दैट इसमें और कोई चीज टेक्निकल नहीं है, बिकॉज वंस द प्रोसेस होल्ड्स, ओके, एक बार प्रोसेस होल्ड हो गया मतलब हॉल्ट हो गया, एक बार हो गया आपका पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बन गया,
पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया। एक बार प्रोसेस पूरी तरीके से स्टॉप हुआ, उसके बाद ना ये जो राइबोसोम सारे एसोसिएट हुए थे, याद है, सारे एक साथ आए थे। सो एक बार हॉल्ट हुआ, उसके बाद the ribosomal subunits will disintegrate or simply dissociate. एक बार आपका राइबोसोमल सब यूनिट डिसइंटीग्रेटेड डिसोसिएट हो गया, उसके बाद क्या भाई, इसके बाद ये जो mRNA रहेगा ना साइटोप्लाज्म के अंदर, दिस mRNA विच इज डन नाउ ना, इसका प्रोसेस हो गया है। एक बार होने के बाद ये प्रोसेस जो mRNA रहेगा दैट विल बी degraded by what is called as nuclease. Okay, it will be degraded by nuclease से प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। बट mRNA के स्टार्टिंग और एंडिंग में स्टूडेंट्स ना कुछ सीक्वेंसेस होते हैं। ओके, एट 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड of mRNA there are certain sequences, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं, एंड दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड एज यूटीआरस। ओके, इनको बोलते हैं यूटीआर। व्हाट इज यूटीआर? यूटीआर इज अनट्रांसलेटेड रीजन्स। ये ट्रांसलेशन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, देन व्हाई आर दे प्रेजेंट? ये क्यों है वहां पे? दे आर प्रेजेंट जस्ट बिकॉज यूटीआर्स जो है, यूटीआर्स दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन का एफिशिएंसी ये लोग बढ़ाते हैं। यहाँ पे आपका ट्रांसलेशन खत्म हो गया, इतना ही इजी, नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो आपने ये चीज कर दिया, आपने पूरा फिर एक बार हो गया तो द एंटायर राइबोसोम इज रिलीज्ड। सो देखो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। अपन ने क्या है, इंट्रोडक्शन देख लिया, इंट्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, एंड अदर देन दैट देन वी मूव्ड ऑन टू द process of initiation था, then we talked about the elongation वाला part, and then we talked about termination वाला part। देखो जरा, it is easy, आपके बुक में इसके 2 से 3 ऐसे distributions दिए हुए हैं, एकदम पेजेस में elaborate किया है। diagram is more than enough in terms of understanding what this process is all about. Whenever they're asking an exam, you'll have to ensure that while they're asking an exam, it can be a long answer question for 4 marks. So if they're asking you for 4 mark, you'll have to draw the diagrams also as mentioned, which is there in the textbook. And other than that, you'll also have to write enough so as the concept is very well cleared. Okay, you'll have to make that point enough. And also ensure that each and every concept of 3 processes, initiation, elongation and termination is covered. ओके, सो आई होप ये वीडियो, ये मॉड्यूल जो था आपको समझ में आया है, बिकॉज नेक्स्ट मॉड्यूल विल बी टॉकिंग अबाउट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन विच इज लैक ओपेरॉन। ओके, लैक ओपेरॉन will take in a one module and then also club it with the human genome project and the DNA fingerprinting. So that will be a concluding module for this chapter, students. I hope the concept and the understanding of this module and the previous modules are very well clear to you. Also, as I rightly stated before starting the class, please visit previous lectures, please visit previous modules. That will be really beneficial for you, because in general that is going to help you understand the links of the chapter. If you jump in from the middle, it will be difficult for you to understand the concept, and therefore I will highly recommend you to please go and visit our previous lectures, understand them in details, and if you have any doubt, please put them down in the comment section. We'll reply you as and when we see it, and as early as possible. I'll see you in the next class. Till then, take care and stay safe.